Bismillahirrahmanirrahim. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal Campus online lectures. This lecture is for grade 3 for the subject of English, and we are doing unit number 17, which is an informal letter to a pen friend. And this is third lecture from this unit. We are going to do the topic of joining sentences and capitalization and commas in letters. Then we will learn how to write a letter, and we will learn that what process is used to write a letter. So please open your English classwork notebook and write down serial number, date and topics. Prepare your index. Dear grade 3 students, before we begin, make sure that you have your English students book, your classwork notebook and your complete stationery with you. Listen to the teacher attentively and carefully, and if you need to ask anything from your teacher, you can send a WhatsApp voice note. So open page number 98 from your English students book. We are going to begin language portion, and the topic is joining sentences. Please write down date and day on the top of this page. Joining sentences means combining two or more simple sentences into one new sentence. Suppose you have 2 or 3 sentences and you need to join them. You use some words that are used to join the sentences. For example, अगर आपने 2 sentences को join करना हो तो उसके लिए आप use करते हो interjection. कौन से words use करते हो? Interjection. और इंटरजेक्शन क्या होती है? इंटरजेक्शन वो वर्ड्स होते हैं जैसा कि एंड, बट, और। इसके अलावा हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं ज्वाइन करने के लिए सेंटेंसेस को, वो होते हैं विच, हु, वेयर। ओके, अब हम देखेंगे कि हमने इन वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है अपने सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए। नायला इज़ अ गर्ल। सपोज़ यहाँ पे ये सेंटेंस ब्रेक हो जाता और आगे लिखा होता शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, और हमने इनको ज्वाइन करना था। हमने क्या किया? नायला इज़ अ गर्ल हु इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ओके ग्रेड 3 स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूँ कि हम हु यूज़ करते हैं पर्सनस के लिए, वेयर यूज़ करते हैं प्लेसेस के लिए, विच यूज़ करते हैं थिंग्स के लिए। इज़ इट क्लियर? हु हम किसके लिए यूज़ करते हैं? पर्सनस के लिए, वेयर प्लेसेस के लिए, और विच चीज़ों के लिए। ओके, open page number 98 from your students book. Here the question number 1 is complete the following sentences with who, which और where. यहाँ पे आपको 6 sentences given हैं जिनमें blank है, और आपने ये question बुक के ऊपर ही अपनी लेड पेंसिल के साथ नीटली फिल करना है। और हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स हम किस सेंटेंस में कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, विच, हु और वेयर। So first sentence is cricket is the game that is played with a bat and a ball. Cricket is a game. Cricket कोई place तो नहीं है, कोई person तो नहीं है। Cricket क्या है? एक game है ना। इसके लिए हम word use करेंगे which. Cricket is a game which is played with a bat and a ball. Sentence number 2 is Sarah is a girl dash was once in Susan's class. सारा इज़ अ गर्ल। सारा एक पर्सन है, पर्सन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हु। सारा इज़ अ गर्ल हु वॉज वंस इन सुसान्स क्लास। सेंटेंस नंबर 3 इज़ द क्वींस पार्क ओवल इज़ अ प्लेस डैश यू कैन वॉच क्रिकेट। प्लेस, प्लेस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? वेयर। The Queen's Park Oval is a place where you can watch cricket. Sentence number 4 is Brian Lara is a famous cricketer dash lives in Port of Spain. Brian Lara is a famous cricketer. ये कोई person है, place है या thing है? Person है, तो हम कौन सा word use करेंगे? Who. Brian Lara is a famous cricketer who lives in Park of Spain. Sentence number 5 is a cafe is a place
डैश यू कैन बाय फूड एंड ड्रिंक। प्लेस, प्लेस के लिए कौन सा वर्ड आएगा? वेयर। अ कैफे इज़ अ प्लेस वेयर यू कैन बाय फूड एंड ड्रिंक। Sentence number 6 is we saw an old fort dash was built by the British. Fort, fort एक ऑब्जेक्ट है ना, इसके लिए यूज होगा which. We saw an old fort which was built by British. Have you done this question on your book? That's good. Come to page number 99. We have to do question number 2. आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन हैं कॉलम ए में 6 सेंटेंसेस और कॉलम बी में भी 6 सेंटेंसेस गिवन हैं। आपने देखना है कि हमने किस सेंटेंस को किसके साथ ज्वाइन करना है और दरमियान में ज्वाइनिंग वर्ड कौन सा आएगा। ये आपको कुछ सेंटेंसेस गिवन है। विच, वेयर और हु आपको मिडल में दे दिया गया है कि हमने किसको किसके साथ ज्वाइन करना है। Fort George is a place which was built on the top of hill. Match these columns. A museum is a place. अब place को किसके साथ join करेंगे? Where. A museum is a place. अब देखते हैं हम सारे options. Arrange the class visit. You eat outside. You can learn about the past. Was born in Sialkot. You can see different animals. A museum is a place you can learn about the past. Join these sentences. A picnic lunch is a meal which you eat outside. Mrs. Taylor is a teacher who arranged the class visit. A zoo is a place where you can see different animals. Allama Iqbal is a famous poet who was born in Sialkot. Have you done this? That's good. From page number 99, we are going to learn the next topic, which is capitalization. इसका क्या मतलब है कि जब आपको कोई सेंटेंसेस या कोई पैराग्राफ या कोई भी रिटन फॉर्म दिया होता है, आपको ये कैसे पता चलता है कि इसमें कौन से लेटर्स कैपिटल आएंगे और कौन से स्मॉल आएंगे। और आपने ये देखना होता है कि अगर वो पूरा पैराग्राफ स्मॉल लेटर्स में है तो आपने ये देखना है कि यहाँ पे कौन से लेटर्स हैं जिनको कैपिटल होना चाहिए। इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटलाइजेशन। वी यूज़ कैपिटल लेटर्स फॉर द फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट वीक आई वेंट टू अ म्यूज़ियम। अच्छा, एक बात आपको पता है, ग्रेड 3 जब भी आई वर्ड आ जाता है वो हमेशा कैपिटल होता है। आई कभी भी स्मॉल नहीं लिखते, हमेशा कैपिटल आता है। अगर ये वर्ड्स के बिटवीन है तो फिर तो वो स्मॉल आएगा, लेकिन अगर आई मैं वाला आई है, आई प्रोनाउन है, तो वो हमेशा कैपिटल आएगा। ओके, उसके अलावा हम कैपिटलाइजेशन यूज़ करते हैं नेम ऑफ पीपल एंड प्लेसेस। जितने भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन्स क्या होते हैं? नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स स्पेसिफिकली। उनके जो नेम्स होते हैं उनका फर्स्ट लेटर भी कैपिटल होता है। फॉर एग्जांपल, नायला, असलम, सियालकोट, आमना, अरमान, इज़्ज़ा, खाशिया, सना, ये सब लेटर्स क्या होंगे? इनके फर्स्ट लेटर्स कैपिटल होंगे। उसके अलावा डेज ऑफ वीक एंड मंथ ऑफ ईयर, इनके जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं वो कैपिटल होते हैं। मंडे, मार्च 1, फेब्रुअरी, अक्टूबर, ट्यूसडे, सैटरडे, सारे डेज और सारे मंथ्स के नेम्स के फर्स्ट लेटर कैपिटल होते हैं। ओके, फ्रॉम स्टूडेंट्स बुक पेज नंबर 99, नाउ वी आर गोइंग टू डू द exercise of page number 99. You have to do this on your book. You will just underline the letters which are to be capitalized. For example, it begins with our teacher Mr. Khalid. आप क्या करेंगे? आप our के o को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि आपको पता है कि स्टार्ट हमेशा कैपिटल लेटर से होता है। टीचर मिस्टर खालिद, यहाँ मिस्टर का एम कैपिटल आएगा तो आप एम को अंडरलाइन कर देंगे। खालिद का के कैपिटल आएगा, के को अंडरलाइन कर देंगे। सिर्फ इस तरह से आप अपनी बुक पे इस एक्सरसाइज को
सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आवर टीचर मिस्टर खालिद टेक्स अस टू अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग प्लेसेस। लास्ट मंथ, लास्ट का एल कैपिटल क्यों आएगा? क्योंकि ये सेंटेंस का स्टार्ट है। ही टुक अस टू द एनिमल फ्लावर केव। एनिमल फ्लावर केव, ए एफ सी तीनों कैपिटल आएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक जगह का नाम है, एक स्पेसिफिक जगह का नाम है। ऑन फ्राइडे, ऑन का ओ कैपिटल, फ्राइडे का एफ कैपिटल। ही टुक अस टू द कराची म्यूजियम, कराची के कैपिटल, म्यूजियम एम कैपिटल। नियर सदर, सदर का एस कैपिटल। जितने भी कैपिटल लेटर्स आएंगे उनको आप अंडरलाइन करते जाएं। ही प्रोमिस्ड टू टेक अस टू द मनोरा केव इन मार्च। ही प्रोमिस्ड, ही कैपिटल, मनोरा केव एम एंड सी कैपिटल, इन मार्च, मार्च का एम कैपिटल। हैव यू डन दिस? गुड. Our next work is on page number 100 from students book and the topic is commas in letters. जब हम कोई लेटर लिखते हैं उसका जो भी कोई एड्रेस होता है उसमें हम कुछ कॉमास और फुल स्टॉप्स ऐड करते हैं। आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में अपना एड्रेस लिखा था जिसमें हमने कॉमास और फुल स्टॉप और कैपिटलाइजेशन यूज़ की थी। डू यू रिमेंबर? This is just the same thing. Commas indicate a pause. Addresses have commas after the street address and the city in letters. ठीक है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि आपका जो एड्रेस होता है उसमें स्ट्रीट नंबर हो सकता है, सबसे पहले आपका हाउस नंबर आए, हाउस नंबर, फिर स्ट्रीट नंबर, फिर सिटी। तो हाउस नंबर के बाद कॉमा, स्ट्रीट नंबर के बाद कॉमा और फिर सिटी, और अगर सिटी के बाद कंट्री भी लिखा है तो सिटी के बाद भी कॉमा आ जाएगा। ठीक है, जितने पॉजेज आएंगे उतने बार हमारे एड्रेस में कॉमा यूज़ होगा। इज इट क्लियर? ओके, फ्रॉम स्टूडेंट्स बुक पेज नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 2, राइट दीज एड्रेसेस एंड डेट्स करेक्टली। यहाँ पे एक्सरसाइज 2 में 3 एड्रेसेस और डेट्स लिखे हैं, आपने इनको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। स्ट्रीट 6 ख़याबान इत्तेहाद डिफेंस, फ्राइडे अगस्त 6। आप इसको इस तरह से लिखेंगे एंड दिस विल बी डन ऑन योर क्लास वर्क नोटबुक। सो प्लीज़ ओपन योर क्लास वर्क नोटबुक एंड राइट डाउन द एक्सरसाइज स्टेटमेंट क्लियरली एंड देन राइट इट्स सोल्यूशन। हमने क्या किया, स्ट्रीट 6 के बाद कॉमा, ख़याबान इत्तेहाद ये उनके किसी टाउन का नाम होगा, ये किसी कॉलोनी का नाम होगा, उसके बाद कॉमा और फिर डिफेंस, डिफेंस भी एरिया का नाम है, उसके बाद आ गया कॉमा। फ्राइडे एफ कैपिटल, कॉमा, अगस्त ए कैपिटल। अनदर इज स्ट्रीट 22 ब्लू एरिया इस्लामाबाद, मंडे जून 10th। थर्ड इज स्ट्रीट 16 गुलबर्ग ब्लॉक ए लाहौर, थर्सडे मई 5th। नेक्स्ट इज़ आर राइटिंग वर्क टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। आपको पता है ना इनफॉर्मल लेटर किसे कहते हैं? हमारे पास 2 तरह के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जैसे कि जो कि आपने किसी ऐसे बंदे को लिखने हों जिनका स्टार्ट आप डियर से नहीं करते बल्कि आप सर या मैम उन्हें बोलते हैं। वो लेटर्स आपके बहुत फॉर्मल होते हैं, उसमें आप हाल चाल नहीं पूछ रहे होते, उसमें आप किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए लेटर लिख रहे होते हो। सपोज़ आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो कि आपकी आईटी लैब में कोई आपको मेंटेनेंस करवानी है, तो आप उन्हें कह रहे हैं कि वहाँ पे ये ज़रूरत है। इस टाइप का जो लेटर होगा वो फॉर्मल लेटर होगा। लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड को बर्थडे विश का लेटर लिख रहे हैं तो वो इनफॉर्मल लेटर होगा। एन इनफॉर्मल लेटर इज़ अ लेटर यू विल राइट टू अ फ्रेंड और अ फैमिली मेम्बर। ओके, here exercise for writing work is to write your own letter to a friend or family member about a visit you made to a place of interest. Suppose आपने recently लाहौर म्यूज़ियम विज़िट किया है और आपने कोई हिल स्टेशन विज़िट किया है और आपने कोई भी इंटरेस्टिंग प्लेस विज़िट की है, आप उसके बारे में बताने के लिए अपने फ्रेंड को लेटर लिखेंगे। और लेटर लिखने के लिए ऑफ कोर्स आप उसका एड्रेस से स्टार्ट करेंगे और एड्रेस आपका प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर आप अपना लेटर लिखेंगे,
फिर आप उसकी एंडिंग करेंगे विद बेस्ट विशेज़. दिस विल बी डन ऑन योर होमवर्क नोटबुक. सो प्लीज़ note down your diary, write date, subject and your homework. And your homework is from students book page number 100. Write an informal letter on your homework notebook, and this informal letter is to be written to your friend about telling your recent visit. Another homework is from workbook. Do page number 66 and 69 from your workbook. Note down your diary. Okay, dear students, get your homework done by the next lesson. This is end of today's lesson. Good luck. Allah Hafiz.